this session, I want to focus on that how is the progress of your hobby structure. So, who is going to be volunteer as want to share the status of his project, because we are going to discuss on that project itself today. Yeah, Divya. Good afternoon, sir. Very good afternoon. If you can just switch on your camera so we can see Yes, something sir. clearly. And yeah. Hello, sir. Hello, Divya. How are you? I'm good. I'll just show you what I have set up. That's great. So So you these opted for a poly bags. yes, sir. Sir, that is what was readily available to me. Yeah, that's true. That's true. And so these are sorry, sir. It's the plain passing bed. Yes, sir. So these are like these are 6 in one row. I have kept them zigzag in a zigzag pattern, and these are 10 in one row. Okay. The only reason for this 10 and 6 is because this is the only space that I have where I can put. Fair enough. Fair enough. Fair enough. So this is the lateral pipe, and can you show me the dripper? The dripper. Focus on the dripper. Yes, sir. Yeah. Okay. So this is what LPH? I think, sir, it's somewhere around 2, I guess. 2. So I'll just confirm. I'll look at the order once more and I'll that confirm. Is Divya. Divya, Yes, that is the work you should do before. So Yes, based sir. on your water requirement, we need to decide that what is required for us. And as a thumb rule, you Yes, always sir. look for a lower discharge. Okay, sir. Why? Okay. लोअर डिस्चार्ज क्यों? क्योंकि क्या होगा कि अगर आपको पानी की ज्यादा जरूरत है तो यू कैन ऑपरेट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। दूसरा चीज होता है कि अगर पानी तेजी से गिरता है कोकोपीट मीडिया में तो वो अपना एक रास्ता बना लेता है और वो मतलब क्रॉप की रूट जोन में रुकता ही नहीं, वो लीच हो जाता है। तो आप जब चलाओगे, अगर ज्यादा डिस्चार्ज से आप चलाओगे 5 मिनट के लिए, तो क्या होगा कि आपको लीच वाटर ज्यादा दिखेगा, लगेगा कि आपने इरिगेशन ज्यादा किया है, बट आपकी क्रॉप को हो सकता है वो सफिशिएंट मॉइस्चर नहीं मिला हो। Okay. So everybody, the key is look for low discharge dripper. Okay. Can you just go to that lateral pipe, near to lateral pipe? Yes, sir. From the point you connected this. Sir, I have to connect one more. So this is how it goes. No, I'm talking about each pot. Okay, sir. The pipe. Yeah. Sir, so Teflon tape. You just inserted that. That's all. Yes, sir. Punctured it, like made a very small hole, and covered this micro tube with Teflon tape. And pushed it inside. This is what I know. Like. Yes. So, do you have a dripper with you? The dripper you put on the at the discharge point. So this one. Yeah. You want me to get an extra one, is it? Yes, because I'll show something to you. I can take this off if you want. Yeah, you take it. You take it. Yeah. Just. So. Yeah. So you see that the bottom yes. There is a knob kind of a thing. Yes, sir. Yeah. So this is designed to fix in your lateral pipe. Oh, okay. So this is supposed to go here. Okay. Yes. Okay. So that's how I ask everybody to ask as many questions as you can. So सवाल पूछने से बात बनती है. So आपको जो टेफ्लॉन टेप और ये सब चीज लगाने की जरूरत पड़ी, वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. आप इसको सीधे उसके अंदर आप वो लगाओ. आपके उसमें एक चीज मिसिंग है, जो एरियो ड्रिपर्स होते हैं जो कि आपको फिक्स करने होते हैं. मे बी
I think Salini ma'am, Salini has that. She has shown in that picture. Yes, sir. Yes, sir. I have those in my irrigation plant. I will just show you. I'll go there and I'll show you. That's better. That is going to help Divya. So instead of putting that way, you have to put at the end of your that thin pipe, जो पतला वाला pipe आप उससे निकाल के लगाओगे. Okay, sir. Do you have lateral और है आपके पास lateral pipe? हाँ जी sir, है sir. उसमें सिंपल सा एक छोटा छेद करना है और छोटा छेद करके ये पतला पाइप नहीं, आपको जो आपका ये ड्रिपर है, इनलाइन ड्रिपर है. If you remember in the presentation itself, I have shown you that. Yes sir, yes I remember. It was fixed on the lateral drip line. Yes sir. Okay, so you just puncture it and just insert it, and on the top of that, if you just put that dripper in the camera. Okay, this is then there is no need for even aerial dipper. This is serving your purpose. You just something like insert that one, and the water will automatically drop there. Yes sir. Okay, and you just show me the dripper. So this one? Yeah. Yes. So other side, yellow side. Go to the yellow side. Yellow side. This side, you just insert वो पतला वाला पाइप जो आपका निकलेगा, जो निकला है, अभी जैसे आप उसमें से निकालो, पाइप में से lateral पाइप में से निकाल लोगे. So this way. Yes. Not other side. Not here. Yes sir. Here. ये वाला अंदर जाएगा और ये वाला इसके ऊपर आएगा. Exactly. Okay. Exactly. इसमें क्या होगा, जब आप चलाओगे ना अपना ड्रिप इरिगेशन, तो आपको लीकेज बहुत होगा. क्यों होगा? क्योंकि सर टेफ्लॉन टेप पे कितना ही भरोसा कर सकते हैं, ह्यूमन एरर भी हो सकता है. नहीं, टेफ्लॉन टेप पे भरोसा तो कर सकते हैं. आपका ये जो पतला वाला पाइप है, इसके आपने एंड में प्रेशर क्रिएट करने के लिए वो ड्रिपर लगा दिया. ओके. तो ये पतला वाला पाइप में आपका वाटर का प्रेशर क्रिएट होगा, और प्रेशर क्रिएट होगा तो जो जहां भी उसको मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहीं से पानी लीक करेगा. But this dripper is designed to insert in your lateral pipe. Okay. I think Madam Salmi is on two, so one on mobile, so she is there, I guess. Yes sir. Yeah. So these are the arrow drippers. Yes, exactly. So this is the kind of aerial dripper. Even this is little bit higher side. Otherwise, तो वो सीधे आप उसी में वो कर देते हैं. But this is also equally good. The purpose of this aerial dripper is, Divya, इसमें अगर आप aerial dripper का शालिनी जी, you take out one from वो पतला वाला पाइप से आप बाहर निकालिए, and जो उसका देखिएगा आराम से वो टाइम थोड़ा सा फिक्स हो जाता है. I have extras. I'll show you that. So that one it is better. क्योंकि उसमें जो एरियो ड्रिपर आपका जो पाइप के अंदर इंसर्ट होता है, छोटा सा पोर्शन, उसमें बहुत सारे पोर होते हैं और उस पोर से इजीली पानी निकलता है. जी. तो अभी लेट शालिनी जी शो दैट. Yeah. तो इसकी वजह से वो एरियो ड्रिपर इज ऑलवेज सजेस्टेड. अब इसका can you do something like it opens up like this and it has little holes here. Yes. So the water comes out from all over the place. Okay. Yes. So that's how it is. It is recommended to go for aerial dripper. But whatever you done the arrangement, it is also fairly good. Okay, sir. Yeah, Salini ji, thank you. We'll come back to you. First, let Divya finish. Okay. Yeah, Divya. Further. So one improvement is you will put all the drippers in line. Yeah. And so I've gone with a kind of zigzag pattern, so that मैंने ऐसा सोचा था कि जैसे marjoram का the area that it will take will be this much, whereas the basil will go vertical.
So I can mix और marjoram और basil का लगभग इसी pH is almost in the same range. So I thought maybe zigzag ways में I can put one basil here, and then cross में I can put basils, and across the left ones I can put marjoram. And आज ही मेरे को मतलब I was just researching, तो मेरे को पता चला कि marjoram is a good companion crop to basil. तो अगर ये प्रिंसिपल ठीक है तो ये आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं. But only thing I suggest, don't put like the way you are looking for कि आप triangle में जो zigzag motion में एक में आप वो डालोगे मार्जरम और बाकी में बेसिल डालोगे. एक्चुअली बेसिल का क्या होता है, वो हाइट थोड़ा ज्यादा होता है जी. ठीक है. तो मार्जरम का क्या है, वो शेडिंग इम्पैक्ट डालेगा. तो दोनों को अलग अलग ही लगाओ. ओके सर. दूसरा, आपने सबसे पहले मेरे को बोला कि स्पेस कम है जी. आपके पास जी. बट मुझे लगता है कि यू आर रिच इन स्पेस. इतना दूर दूर क्यों रखा है इसको? सर ये जो बेंड हो रहा था तो जैसे अगर मैं इसे थोड़ा पास कर दूंगी तो ये सर ऐसे बेंड हो रहा था. और नहीं, I'm not talking about that. I'm talking about distance between one and two, first and second bag. Okay. You can put a closer also. Okay. Yeah. So maybe what you can do, you can buy some more bags if you want. और जो अभी आपको ये पूरा lateral line change तो करनी ही पड़ेगी जी. Change everything और according, because see जब आप कहीं पे भी protected cultivation में जाओगे, हॉबी में ठीक है आपका स्पेस जो भी है ठीक है, बट जब भी आप कमर्शियल प्रोजेक्ट पे जाओगे तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हाउ एफिशिएंटली यू आर यूटिलाइजिंग योर स्पेस, बिकॉज एवरी इंच इज कॉस्टेड यू अ मनी. ओके, ठीक है. तो इस वजह से आपको ये देखना है कि भाई हमें जो जितना क्लोज कर सको, अनटिल एंड अनलेस आपको वो प्रॉब्लम नहीं हो रही है कि हाँ जी प्लांट का ग्रोथ अच्छा नहीं हो पा रहा है. एंड फॉर आपको मार्जरम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप एक के बगल में एक रख दो तब भी ठीक है. बट बेसल क्योंकि थोड़ा ऊपर जाता है तो बेसल में हो सकता है कुछ इश्यू हो, so that you can later on decide, because आपका जो ये पाइप उसमें से निकल के आ रहा है, it will give you a little space, plus minus कर सकते हो. Okay. ठीक है. Okay sir. Yeah, that's fairly good. It's a very nice one. So where is your tank? Sir tank अभी connect करना है क्योंकि sir वो tank, that's the missing part of the. So, तभी आपने अभी तक मेरे से सवाल नहीं, तभी अभी तक आपने मेरे से elbow joints. Yeah, it's okay, but आपने पंप अभी नहीं चलाया, पानी नहीं चलाया, इसीलिए आपने सवाल नहीं पूछा. अदरवाइज अभी तक आपने मुझे तंग किया होता, क्योंकि लीकेज होता और लीकेज होने के बाद आप मेरे से सवाल पूछते. जी सर. So this and then fertilizer recipe need to be ready. And how about the seedling and all? You mentioned that you have already sown. Yes sir, last week I have already done it. But जैसे 14 to 28 days oregano का लगेगा. Basil saplings have started coming a little bit, but थोड़े से टाइम में like within like maybe 4 or 5 days थोड़ा मतलब I'll know better whether they are healthy enough or not. So एक चीज ध्यान रखना, आप ये दोनों क्रॉप आपका कटिंग से बहुत अच्छे से हो जाता है, तो you just plan next time for a cutting only. Okay sir, okay. सीड से तो टाइम लग जाता है, सीड थोड़ा जर्मिनेट होके फिर हेल्दी सीडलिंग होगा तब आप ट्रांसप्लांट कर पाओगे. जी सर. एंड सपोज आपका सीडलिंग निकल आया, फिर उसके बाद क्या करोगे आप? सर सीडलिंग का फिर जब वो एटलीस्ट 2 to 3 inches हो जाएगा तो I'll transplant it here. इस सिस्टम में, and then we'll start the irrigation and fertigation, like जैसे मतलब कैसे स्टार्ट करोगे? वही अगला सवाल मेरा वही था. How you are going to start? सर इनिशियली जो आपने पहले बताया था, ट्रांसप्लांटिंग के तुरंत बाद फर्टिगेशन नहीं करना है, उससे नॉर्मल वाटर देना है. जी, केवल इरिगेशन करना है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इरिगेशन एंड फर्टिगेशन?
Sir, irrigation is normal water, fertigation is nutrition mixture. Mixed with, जब irrigation को आप fertilizer के साथ करते हो, that is fertigation. So initially you have to go for a 2-3 days or a 5 days based on your crop growth as a only irrigation, and after that you switch over to fertigation. Okay, sir. Okay. So any further question you have? Sir, अभी तो नहीं, अभी now I'll change the whole lateral pipe. पूरा दोबारा से सेटअप करके कल ही I'll send the pictures on the group so you can have a look at it and tell me whether I'm on right track or not. I'll suggest you just make a small video, a brief video, and share everyone can see that. Okay, sir, I'll do that. एक अभी और आपकी प्रॉब्लम आने वाली है इसमें. जी सर. सराउंडिंग आपको क्लीन चाहिए होगा. यस सर. तो ये जितना भी आपने रखा है इससे पानी एक्सेस जो होगा वो लीच होगा. जी सर. क्या करोगे? सर ये जनरली मैं अपने प्लांट्स जो बाकी जो गार्डन प्लांट्स के लिए भी यूज करती हूँ ताकि स्टेगनेंट वाटर ना रहे आसपास. तो मैंने सोचा ये बट अल्टीमेटली क्या होगा, थोड़ा सा गंदगी होगा. सो कोशिश ये करिए कि भाई गंदगी वो आपकी एक ही दिन हो. तो इफ यू कैन गेट समथिंग लाइक अ लो डिस्चार्ज वाला आपका ड्रिपर, तो आपका पानी ज्यादा देर तक चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, तो वो बाहर नहीं आएगा, आपके उसी में होगा. एंड एवरी 15 डेज एक दिन आप अच्छे से उसमें इरिगेट करो जिससे कि आपका पूरा सॉल्ट एक्यूमुलेशन वॉश हो जाए. ओके सर. सर कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कितना एलपीएच ठीक रहेगा? सी आई थिंक ये आपका 1.6 या 1.2 इसके आसपास का आता है. So anything मतलब 1 के आसपास या 1 से जितना भी कम वाला हो, 1 not less than 1 LPA ऊपर जो भी हो, जो सबसे कम हो वो आप ऑप्ट कर सकते हो. अगर नहीं भी है तो इट इज ओके, बट वही है कि आपको फिर यू हैव टू बी अ वेरी वेरी क्लेवर कि आपका बहुत थोड़ी देर के लिए चलाओगे बंद करोगे और उस तरीके से आपका इरिगेशन होगा. अदरवाइज पानी आपका बाहर ज्यादा जाएगा, प्लांट्स में कम आएगा. ओके सर. ठीक है जी सर. एक और सवाल बनता है, मे बी एनीबडी एल्स कैन रिस्पॉन्ड. दिव्या हैज ऑप्टेड फॉर दैट टाइप ऑफ अ ग्रो बैग जो साइज है. इस साइज पे और ग्रो बैग और राइजो बैग में डिफरेंस या बेनिफिट क्या है, कौन बताएगा? एनीबडी? हेलो sir, can I switch off the video? I am in office. Yeah, you can. Okay. Thank you sir. Can I say I think राइजो बैग्स में क्योंकि प्रूनिंग होता है तो बहुत बड़ा साइज की जरूरत नहीं होगी. एंड प्लास्टिक वाला इज लाइक प्रूनिंग नहीं होगा तो आई थिंक यू नीड अ लिटिल बिगर साइज. Okay. Pruning, you are talking about the root pruning or what? Yeah, root pruning. Yeah. उसमें because of the aeration, because rhizo bags are aeration containers, so उसमें root pruning होगा जिससे कि बैग थोड़ा छोटे साइज का भी बेटर रहेगा. Agree. So that's the one point. I think Yellow Gudda want to say something. Sir, good afternoon. Actually, rhizo bag में pores रहेगा sir, wherein like air exchange will be there, aeration for roots will be there. Whereas in plastic air bags, like whatever the grow bags we saw now, in those bags, little bit holes will not be there, pores will not be there. Wherein aeration will not, for root aeration, it will be less compared to rhizo bags. Again, it is almost the same thing. One is the root pruning because of जैसे कि light दिखता है root को वो मर जाता है. That is going to initiate the root pruning. And second point, what Yellow Gudda is saying that aeration, I agree absolutely. क्योंकि plastic में aeration आपका कम होगा और ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा. ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा. And rhizo bags, sir, like heating up will be less compared to plastic bags. Absolutely, the temperature is going to be maintained. So ultimately अगर आप देखो तो जो 3 आंसर्स आए, 3 के तीनों वो आंसर्स हैं जिससे कि रूट को बेटर माइक्रो क्लाइमेट मिलेगा. ओके, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ हाइड्रोपोनिक्स. एंड हवा, पानी और टेम्परेचर, यही 3 चीज जो होता है जड़ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ओके, एनीबडी एल्स वांट टू ऐड समथिंग?
One durability will be more, sir, compared to Rhizobex. Durability is more. उसमें आपका अगर कोई छोटा कट वट भी ज्यादा उससे आसानी से नहीं लगता है, so life is going to be longer than polybag. Anything else? Okay, so these are the something we have seen Divya's soilless hydroponic in polybag. So who is next going to show his project? Very well, Divya. Keep it up. Thank you, sir. Yeah. So who is next going to show me his project? Sir, मैं दिखाऊं? Yeah, go ahead. Okay. बट सर मेरे अभी उसमें मुझे लो ईसी कोकोपीट नहीं मिला, तो मेरे बैग्स खाली हैं. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. We'll at least basic idea आपको कोकोपीट का even दिव्या का देख के बैग दिख गया. The only thing is I wanted to see those laterals and all. Have you attached this tank and all? नो सर, एक्चुअली उसके लिए मुझे पूछना था. मेरे पास ये मैंने कल बनवाया है अपना, तो मेरा 50 लीटर्स का टैंक है मेरे पास जो अभी एट प्रेजेंट घर पे था, और उसमें इसमें जो मेरी नीड है वो 500 लीटर्स की है. सो मुझे वो बड़ा टैंक लेना होगा, तो वो आज I'll suggest why to invest. If 50 लीटर का है, you just something like use that one. बट उसमें जैसे अगर मुझे रोज में मेरे प्लांट को 18 लीटर पानी चाहिए जब वो बड़े हो जाएंगे, तो उस समय क्या मुझे ज्यादा पानी चलाना पड़ेगा सारा दिन? मतलब आफ्टर एवरी यही होगा आपका. जैसे देखिए, जो टैंक का साइज डिसाइड होता है, वो साइज डिसाइड होता है कि एक बार में आप कितना पानी डालना चाह रहे हैं. तो जैसे आपने राइटली वो किया कि आपको ज्यादा बड़े उसका चाहिए, बट इसमें जो मॉडिफिकेशन यू कैन डू एंड यू कैन गेट द वर्क डन बाय द स्मॉल वन. जो आप इरिगेशन जब पंप चलाओगे तो पहली बार में आपको पता चल जाएगा कितनी देर में ये खाली हो जाता है. ठीक है, तो आपको इरिगेशन शेड्यूलिंग होगा, क्योंकि एवरीडे का वाटर रिक्वायरमेंट ग्रेजुअली जैसे ही आप करोगे आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरा, आपको सबसे पहले यही देखना है, सेट करना है कि मेरे जो ग्रोइंग मीडिया है उसमें कितना पानी दिन भर में लग रहा है. सो द मोमेंट अगर आपको लगा कि दिन भर में मेरे को 200 लीटर पानी लग रहा है, so it's mean आपको टैंक 4 बार भरना पड़ेगा. चलाना पड़ेगा. ठीक है, 4 बार चलाना पड़ेगा और 4 बार भरना पड़ेगा. तो थोड़ी सी एक्सरसाइज आपकी ज्यादा हो जाएगी कि आपको हर बार उसका वो फर्टिलाइजर मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही बार में आपका पानी निकल गया तो फर्टिलाइजर सॉल्यूशन फिर बार बार डालना पड़ेगा जितने इरिगेशन है. ठीक है, बड़े टैंक में यही आपको फायदा होगा कि एक बार आपने उसका ईसी मेंटेन कर दिया तो दिन में 4 बार चला तो उसमें फिर आपको दोबारा फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं है. ठीक है, so that's the way you can manage, but if you are comfortable doing that, it is okay. Otherwise you can go for the big tank. Okay, ठीक है सर. ओके, तो वो मेरा फिर बस मेरे को टैंक जुड़वाना है, बट ये पाइप्स और लैटरल पाइप एंड दिस. Can you show me that the junction point from the lateral highs pipe से जो निकला है उसमें क्या लगाया आपने? इसमें देयर वर, जो मैंने अमेज़न से मंगाया था उसी में ऐसा ये थे जिससे वो फिक्स हो गया है. देयर वर पिन्स इसके साथ में. हाँ, इसका डिस्क्रिप्शन आप देखना, ये वो ड्रिपर ही है जैसे उसमें, या समथिंग बिना ड्रिपर का है इसके ऊपर. कैन यू जस्ट गो लिटिल क्लोजर, आई वांट टू सी दैट. Is there anything else, और वो पतला सा केवल आपको एक कनेक्टर टाइप का दिया था उसी से काम? उसमें गोल भी, जैसा दिव्या के पास राउंड वाले हैं एग्जैक्टली वो भी है हमारे पास में, इसमें वो भी इसमें काफी सारे हैं. ठीक है, then it is okay. Only thing is कि you just go back and see the specification, what is the discharge capacity. उसके बेसिस पे आपका शेड्यूल डिसाइड होता है कि अगर आपका 2 LPH लीटर पर आवर का है तो इट्स मीन आप अगर 10 मिनट चलाते हो तो कितना पानी निकलेगा. अगर 1.6 LPH का है तो उसमें पानी कम निकलेगा. तो जब पानी कम निकलेगा तो आपको थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए चलाना पड़ेगा. एंड ऑलवेज ग्रोइंग मीडिया लाइक कोकोपीट, परलाइट और ये सब में आपका जितना फ्रीक्वेंट इरिगेशन विद लेस वाटर होता है वो ऑलवेज बेटर होता है. ठीक है,
ठीक है, ठीक है सर। बाकी मोर और लेस इट इज लुक हाँ मतलब रियली गुड। ठीक है, बस इसमें जैसे ये वाला जो पॉइंट है इसमें वो जो गोल वाला Saliji, we missed your voice. ओके Yeah. आई एम सेइंग कि जो ये पॉइंट है इसमें हाँ, कैन यू सी माय, आप इसी में वो जो राउंड वाले ड्रिपर्स हैं वो लगा के लगाएं या ये ऐसे ही ठीक है? नहीं बट अभी आपने राउंड वाला लगाया है या नहीं लगाया है? नहीं अभी राउंड वाला नहीं लगाया हुआ, इसमें एक again you also made that mistake, the same mistake. Maybe what you can do, you can just share me a video that I have this part, then I can get that how to connect. Maybe I'll just respond on the same video and I'll just share that how to connect it, because you have a one lateral, you need to have a one dripper which is going to control the delivery of water. Third is this patla pipe. Fourth is yours should be a aero dripper. तो ये चार चीजें होनी चाहिए. हाँ, अगर ये राउंड वाला भी है, we have those राउंड वाला also. Yes. So वो राउंड वाला ही होता है जिससे कि आपको पानी का क्वांटिटी पता चलता है. अगर आपका वो कोई भी जैसे 2 LPH का है ड्रिपर, तो वो ऑलवेज 2 लीटर पर आवर के हिसाब से ही डिस्चार्ज करेगा. सो यू कैन एस्टिमेट कि एक बार मैं 5 मिनट चलाऊंगी तो कितना पानी मेरे हर प्लांट को मिलेगा. Okay. Okay. So maybe what you can do, you just prepare a small video that this I have and I have done this way. You can show that I have done this way. Then if it is a right, it is okay. If there is any modification required, I'll suggest that modification. ठीक है, okay sir. Okay. And how about the getting a coco peat? I don't know. अभी I have to check घर के आसपास, क्योंकि ऑर्गेनिक मिल रहा था, लो EC नहीं मिल रहा था. So I thought I'll maybe go to Khan Market and I can check there. Maybe, I don't know. You are in Delhi only. Which part of Delhi you are? I'm in Gurgaon. Hey, then you just go to Kapas Hera. Balaji. Balaji wala. Balaji. उससे you ask Caltech का और वो poly sheet में covered होगा. ठीक है. Okay. So that is because we have been using the same coco peat from past 2-3 years. So that is giving a good result. ठीक है. Okay, I'll get that today then. Yeah, and if you are going and there, sir, many seeds. Yeah, you can also ask and for perlite. Perlite, okay. Yeah. So I have to mix perlite and coco peat both. Yes, by volume 70-30, not by weight. By volume 70-30, and after soaking your coco peat. Coco peat. और Okay. कैसे करेंगे आप? मे बी आप एक मेजरिंग का कोई भी एक बकेट या कोई आप इवन ये राइजो बैग ही ले लीजिएगा कि 3 राइजो बैग आपने डाला तो 1 राइजो बैग भर के आप परलाइट डालिए, देन मिक्स करिएगा. ठीक है. ठीक है. ठीक है. एंड मैंने अभी बैग में चेरी टोमेटो के सीड्स प्लांट वो कर दिए हैं. आई डोंट नो हाउ टू शेयर. आई एम बैड विद द गैजेट्स. So which variety you opted for? I don't know. It's a hybrid seeds. Omex के hybrid seeds. हाँ, Omex वाला जो है ये locally सब वो पैक करता है. Okay. कहीं से सीड ले आके छोटे पैकेट बनाता है. It's okay. Okay. Once you are going there to Balaji, you can ask for maybe he's having a good seedling for a cherry tomatoes. So if you have a seedling, you can go for a seedling. Okay, fine. I'll do that then. Yeah. Okay. So great going. I'm a little bit satisfied so far that my effort is yielding result. Okay, That's sir. great. That's great, Saliji. Thank you. Thank you, sir. So, yeah, Yellow Gutta, you have some question. Yes, sir. Which company coco peat is better, sir? Like for large scale, if you are doing in large. I'm not doing any advocacy. I'm only saying I'm using the Caltech का जो something Kale Grow या something I don't know. उसका जो मुझे याद है लड़के लेके आते हैं उसके ऊपर में वो एक पॉली शीट से वो कवर्ड होता है. उस Caltech का कंपनी का होता है.
तो वो दो तरीके का देता है, एक वो जो पन्नी में each blocks are covered with poly sheet, packed in poly sheet, और दूसरा होता है वो ओपन वाला होता है. तो you go only for the poly sheet one, because जो ओपन वाला हम लोग लेके आए थे, we struggled with that. Okay, maybe I can see if I can get on net. Okay. I'm just trying to see if I can get an image of a specific tail there. I cannot see anyway. So what I'll do, I'll ask my boys from the farm. They will share the picture and I'll share in the group. Okay? Yeah. So who is next going to show me the project? Ashi Burman, how is the status of your project? Ashi. This is a very good way not to speak. If you're there, why are you not speaking? It's okay. You have not done anything, but just speak it out. Share with us. Hello, Ashi Burman. Yeah, maybe Upasana, you can just call on her mobile. Yes, sir. Yeah. Ashi, can you hear us? Sir, incoming call is not available on her phone. But you have to just something chase her and ask her to connect and share the video, whatever the status is. Now, Astha. Astha Malvi. Because I want to hear from everybody, otherwise it's a bit of effort. Sure. Astha, can you please unmute yourself? Hello. Okay, Astha Malviya, you are there? Hello. Yes, Ashi. Hello, good afternoon, sir. हम लोग तो सोच रहे थे आप क्लास बंक करके भाग रहे हो, बता ही नहीं हो नो सर यहाँ पे एक्चुअली में बहुत पानी गिर रहा था, उसके चक्कर में नेटवर्क इश्यू बहुत हो रहा था. सो बताइए अभी आपका स्टेटस क्या है? सर मेरा फर्टिलाइजर रेसिपी नहीं बनी है, बट मेरे पास सारा सामान है, सेटअप भी कर लिया है. बट एक्चुअल में सर ऐसा है कि मैं अभी जहाँ पर हूँ, मैं अपने होम टाउन में नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ. रक्षाबंधन पे आई थी, तो वहाँ पे लॉकडाउन लग चुका है, मैं घर नहीं जा पाऊंगी अभी कुछ टाइम और तो बस वो फर्टिलाइजर मैं घर जा पाऊंगी तभी फिर मैं उसमें फर्टिलाइजर रेसिपी के ऊपर काम कर पाऊंगी, क्योंकि सर मैं अभी फर्टिलाइजर रेसिपी तो एक है आशी, एक हम लोगों ने ये प्लान किया था ना, आपने क्या चूज किया है, सॉइललेस या एनएफटी या क्या? एनएफटी. यस तो अभी आप जब भी घर जाएंगे तो एक वीडियो बनाएंगे आप और ग्रुप में डालेंगे कि व्हाट इज द स्टेटस, या आप किसी पे घर में अपने आप बोल दो कि भाई हमारा जो जो सामान है उसका फोटो एक बार मेरे को करके भेज दो, तो दैट आई नीड टू बी अपडेटेड ऑन दैट कि क्या स्टेटस है आपका. ठीक है? हाँ सर, मैं पापा को बोल दूंगी तो वो वीडियो करवा मतलब कर देंगे. हाँ, मतलब इससे ये होगा कि भाई आपने कुछ सीखा, वाकई में कुछ गेन किया, अदरवाइज इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम, नॉट ओनली योर्स इट्स आवर्स आल्सो. ठीक है आशी? ओके सर, ओके सर. वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड रिजल्ट की एटलीस्ट एट द एंड आप कुछ तो ग्रो करके घर वालों को दो, थोड़ा सा उन्हें लगे कि हाँ जी आप कुछ कर रहे हो. यस सर, यस सर. ठीक है?
सॉरी सर, पर मैं थोड़ा बाहर आ गई थी और अचानक से लॉकडाउन लग गया तो घर नहीं जा पाई। It's not need not to say sorry. It's something like मेरा कोई नुकसान नहीं होना है, आप ही लोग का होगा। जो भी अभी तो मैं यहाँ पे हूँ, आपको जो भी सीखना है आई एम देयर। उसके बाद भी व्हाट्सएप ग्रुप में होगा, बट देन आई विल नॉट बी एबल टू डिवोट दैट मच ऑफ अ टाइम व्हाट आई एम डिवोटिंग नाउ। ओके सर, ओके सर। ठीक है, तो ये अच्छा टाइम है, आप अपना टाइम यूटिलाइज करो, करके इसको कंप्लीट करो। ठीक है, यस सर, ओके सर। दैट्स गुड, दैट्स गुड। थैंक यू सर। थैंक यू। तो आस्था, Rasta Maulvi is not responding. Still not responding. I called them. Abhishek, but you just chase them. Yes, if they are yes. not doing that, will not provide the certificate. It's very clear, because they're very clear कि भाई सर्टिफिकेट उसको मिलता है जो कुछ सीखता है। ठीक है, and this purpose is not to just something like create any kind of a just lecture or a discussion. You want to create something on the ground. No, Those who will submit and show their project, that need to be a one criteria. Yes, sir. Okay, yeah. So Abhishek Kanade, Abhishek, are you there? Yes sir, yes sir. Yes. अगर आप कहते हैं अपना कैमरा ऑन करने की में है तो कैमरा ऑन करें, और नहीं है तो कोई बात नहीं। सर मैं 2 मिनट फोन से कनेक्ट होके आपको बता दूं, मैं लैपटॉप पे हूं। ठीक है। So those for other guys, those who want to just something like show their project, maybe they can connect with their mobile and they can take us to the place where they have their system. Okay, so Abhishek is not there. So meantime, Divya has already. Divya Chauhan has. Yes, sir. Yeah, Divya Chauhan. Hello, sir. Hello. Hey Divya, if you can switch on your camera if you are comfortable, then it's better. Sir, actually अभी मैंने कुछ सेटअप नहीं करा है, like अभी आज या कल में मैं पूरा सेटअप कर दूंगी तो next Monday तक का it will be all ready. So it's mean you need to be something like on the back bench or ऊपर खड़े रहने का, हाँ? Okay sir, most of the thing I have received and sir एक question था, like do we need to wash coco peat before using it? It is compulsory to wash it or buffer it something? Wash कैसे wash करोगे? क्या सिस्टम आपने अभी तक समझा कि wash कैसे करेंगे? सर like मैंने एक वीडियो देखा था YouTube पे, तो उसने बस like RO वाटर लिया एंड उसको वॉश किया एंड उसका TDS मेजर किया था और देखा था कि पहले देखा था TDS जो PPM में आ रहा था वो बहुत हाई था, फिर जब वॉश करते गए उसको तो जो उसका सॉल्ट था लाइक कुछ आई डोंट नो व्हाट ही वाज डूइंग, बट जो मुझे समझ में आया वो ये कि उसने वॉश किया और बाद में जो उसका TDS था फ्लोइंग वाटर का जो आउटलेट से निकल रहा था वो लो हो गया था। तो मुझे ये जानना था कि उसको वॉश करना मैंडेटरी है क्या? See, it is always better to go for that. Why go for that? Because most of the cases में if you are sure कि आपका जो कोकोपीट है वो आपका वो है लो EC वाला है, so then it is okay. Otherwise जो आपने वीडियो देखा है, आपको क्वेश्चन पहले भी पूछना चाहिए था, भाई आप एक किसी कंटेनर में इसको कुछ देर के लिए भिगाते हो and you have to put little bit of a calcium nitrate if you can get hold of that. Okay sir. Okay, calcium nitrate, what calcium nitrate is doing, it is something kind of a nutrient. कैल्शियम जो होता है कोई भी सॉल्ट होता है उसका कहीं भी फिक्स होता है कि उसको डिस्प्लेस करता है, पता है आपको? जैसे आई डोंट नो, सम ऑफ द गाइस मे नो कि जब एसिड सॉरी जो ऊसर सॉइल होता है या एल्कली सॉइल होता है, रिक्लेमेशन के लिए जिप्सम डालते हैं। यस यस यस, जिप्सम इज आल्सो कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट होता है, ठीक है? अब कैल्शियम जो काम करता है वो कैल्शियम केवल आपका जो सॉल्ट एक्यूमुलेटेड होता है सॉइल में उसको डिस्प्लेस करता है, एंड दैट्स हाउ ये बोला जाता है कि आप जब भी सोडिक सॉइल रिक्लेम करिए आप उसमें पानी कुछ दिन तक भर के छोड़िए और फिर उसके बाद आप पानी को ड्रेन आउट कर दीजिए। सो पर्पस इज दैट ओनली
और उसी तरीके से आपको कोकोपीट में भी ये करना है कि अगर आप कर रहे हो तो 3-4-5% जो भी परसेंट का सॉल्यूशन आप बना के उसको कोकोपीट को सफिशिएंटली 4 से 8 घंटे तक भीगे रहने ओवरनाइट सोक करके, एंड वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग यू कैन जस्ट ड्रेन आउट द कंप्लीट वाटर। ड्रेनिंग आउट के बाद देन अगेन यू कैन पुट अ फ्रेश वाटर, और 1-8 घंटे के बाद रख के फिर उसको आप ड्रेन आउट कर दो। 2-3 वॉश करने के बाद देन योर कोकोपीट इज गोइंग टू बी रेडी। बट इफ यू आर श्योर कि हाँ जी आपको जो कोकोपीट मिला है वो आपका लो ईसी का है, देन यू कैन गो विदाउट दैट। नो सर, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बिकॉज मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था और ऐसे प्रोडक्ट्स में तो थोड़ा ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। So maybe you can get hold of some calcium nitrate. You are in Indore. So it's quite 17 to 18 kilometer away from main city, and I'm living in military area, so we are not allowed to go outside completely without the permission. So how you are going to manage? Sir, I have ordered most of the thing online. अभी मैंने nutrients भी order कर दिए हैं। तो कैल्शियम नाइट्रेट तो उसमें एक हाँ ही ना सर, किया है। हाँ सर। हाँ, देन जब आ जाएगा तो उसको कर लेंगे। सर टाइम लग जाएगा उसको आने में थोड़ा। नहीं, बट बिना फर्टिलाइजर आपका सीड वगैरह कुछ आपने प्लांटिंग कर दी है नहीं, क्या? नथिंग। हाँ, तो जब मेरा स्पेनिश है सर, उसमें ट्रांसप्लांटिंग, ये नर्सरी, ये सब कुछ अच्छा, करने की जरूरत है क्या? नहीं ना, सीधे प्लांटिंग कर देंगे। यस या सर। सीधे प्लांटिंग कर देंगे। सर एक बहुत सिली सा क्वेश्चन है, लाइक मेरे पास टीडीएस questions are never silly, okay? The person who is asking, he may be or may not be a silly, but questions are always good. Okay. सर मेरे पास ना टीडीएस मीटर है, लाइक वो मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था, एंड सर ईसी मीटर जरूरी है खरीदना, लाइक वी कैन फाइंड द टीडीएस एंड कन्वर्ट इट, और देयर इज समथिंग फॉर्मूला? You have a Google God, he will tell you that how to do that, but it is not going to be an exact reading, but काम चलाने के लिए आपके वर्क का है, ठीक है? हाँ ठीक है सर। ठीक है, so it is going to work. Okay, thank you sir. चलो, thank you Divya. We would like to see next week a video from you on your project. So sure, now sir. Abhishek is back, I guess. Yes sir. Yeah, Abhishek. Are you able to see? Wait a minute. Yeah, we all can see you, the very handsome boy. Thank you sir. Sir, this is a tower vertical wire. यहाँ पे मैंने ऊपर नेट लगाई है, जिसमें से इस पोल में से पाइप आएगा जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा वाटर। ये पाइप इनलेट है, इसमें से जाएगा, और एक पाइप। You are designing the tower खड़ा कैसे हो रहा है? क्योंकि बहुत पतला पाइप लगाया है आपने, तो नीचे टावर खड़ा कैसे हो रहा है? सर मैंने पहले एक मिनट सर, मैंने पहले ये इसमें करके देखा था, पर ये इसमें स्टेबल नहीं आ रहा था इस बकेट में। तो फिर मैं अभी ये लाया हूँ सर, इसमें मुझे होल करना पड़ेगा इस डायमीटर का, और फिर यहाँ पे अपना ये पंप आ जाएगा और यहाँ पे पाइप आ जाएगा। जो बकेट है उसमें आ नहीं रहा था दोनों सर। ये अब दूसरा सवाल आपका ये होता है, मेरा दूसरा सवाल होता है कि बीच में आप क्या भरोगे? सर वाटर, पानी, न्यूट्रिएंट 50 लीटर्स का है ये। केवल पानी भरोगे? नहीं, बाल्टी में नहीं यार, आपका टावर है, बाल्टी में तो पानी भरोगे। हाँ सर। टावर का जो पाइप है इसमें क्या रहेगा? हाँ, इसमें तो सर नेट कप्स रहेंगे। पानी कैसे मिलेगा उसको? सर ये पाइप इनलेट इसमें से जाएगा ना सर, पानी तो जाएगा। हाँ, तो पाइप से कैसे पानी हर एक उसको कैसे मिलेगा? सर मैंने चेक करके देख लिया, सारे नेट कप्स को मिल रहा है पानी, जो टॉप वाले को मिल रहा है वही नीचे वाले को भी उतना ही मिल रहा है पानी। कैसे चेक किया था आपने? सर मैंने कोकोपीट डाली है नेट कप में, और सर मतलब वो पूरी सूखी हुई थी, तो मैंने देखा कि ऊपर की गीली हुई, फिर कुछ सेकंड्स के बाद नीचे की भी गीली हो गई, और वो एकदम टॉप लेयर की देखी मैंने कि टॉप लेयर जो है वो गीली हो गई। नहीं, बट नीचे वाली लेयर का क्या? टॉप लेयर तो गीली हुई, नीचे वाली लेयर? हाँ सर, टॉप और नीचे पूरी हो गई थी वो गीली, मैं देख लिया था। ओके, दैट देन सेकंड क्वेश्चन इज कि भाई कोकोपीट क्या कहते हैं, बह के आपके उसमें डब्बे में नहीं आई? हाँ सर, आई तो थी। हाँ सर, आई। सो व्हाट इज द समथिंग परसेंटेज? सर अभी तो उसका मैंने कुछ कंक्लूजन निकाला नहीं है, पर मैंने एक जगह पढ़ा था कि उसको थोड़ा स्क्वीज करके रखना, यूज करना पड़ेगा।
नहीं उसको यूज तो करना है एक्चुअली। माय क्वेश्चन इज फ्रॉम द एंगल कि पता चला आपका इतना ज्यादा पानी वो कोकोपीट हो गया कि आपका पंप ही ब्लॉक हो गया, तो वो पंप ऐसा तो नहीं ब्लॉक हो रहा है? नहीं सर, पंप तो ब्लॉक नहीं हुआ अभी तक तो। वो एक चीज देखिए ना आप, क्योंकि पंप में हाँ थोड़ा सर, सा ठीक है। प्रेशर भी लगा होता है। एक दूसरा जो आप टॉप में पाइप छोड़ रहे हो वो कैसे छोड़ रहे हो? टॉप आपके टावर के टॉप दिखाना मुझे। हाँ सर, एक मिनट। ये सर। So you are why you have made a hole there? हाँ सर, इसमें बीच में से इनलेट निकलेगा तो पाइप जो है सर ये। मेरा एक सजेशन है इसमें, आप ट्राई करो कि एक ऐसा एक बॉक्स टाइप का ले लो, एक छोटा सा डब्बा आपकी उसी साइज का ले लो, जो आपका पाइप का टॉप है। हाँ हाँ, पतले पतले डब्बे नहीं आते, उसी साइज का एक डब्बा ले लो। जी ठीक है सर, मैं चेक कर लूंगा एक बार उसमें उसको यूज करके। उस डब्बे में छोटे छोटे छेद कर दो, जिससे कि जो ये छेद किया है आपने, इसमें तो छेद करने के बाद आपने पाइप अंदर डाल दिया तो पानी फोर्स से जा सकता है आपके कुछ पॉट्स पे, तो आपका वो जो क्या कहते हैं कोकोपीट है वो ज्यादा डिस्प्लेस होगा। बट अगर एक छोटा सा डब्बा आपने ले लिया और एकदम से जैसे आपका कोई भी डब्बा खुलने बंद होने वाला हो, उसमें आप इसके ऊपर फिक्स कर दो, टॉप से उसमें पाइप डालो, नीचे की तरफ उसमें होल कर दो, so the water is somehow going to means maybe वो बूंद बूंद गिरेगा या एक पानी की धार जो तेज होती है वो कई छोटी छोटी धारों में बदल जाएगी, तो आपका जो कोकोपीट का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नेट कप होगा वो कम होगा। ठीक है सर, ये मैंने देखा यूट्यूब पे, देखा था बॉक्स मैंने। हाँ ये सर मैंने बॉक्स देखा यूट्यूब पे, जो आप बता रहे हो वो मैंने देखा था। भाई यूट्यूब में तो मैंने नहीं देखा, बट दिस इज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट आई एम टेलिंग, मे बी यू कैन गो एंड हैव अ लुक ऑन दैट। एंड प्लस आपने ये जो टावर लगाया है, इसमें इस टावर की बैलेंसिंग इज गोइंग टू बी चैलेंज फॉर यू, तो कैसे करो? सर वो अब मेनली इस पे डिपेंड है कि सर वो तो लगा के देखना पड़ेगा। मैंने इस पे जानबूझकर कट नहीं किया है अभी कि मैं पहले आपको दिखा दूं उसके बाद ही देखूं। मैं आपको एक सजेशन दूं? यस सर। आप इसको टावर को दो भाग में कर दो, तो साइज आपकी हो जाएगी, हाइट कम हो जाएगी, और यू हैव ऑलरेडी वन बकेट देयर। आप दूसरा बकेट भी ले आए हो, मेक इट इनटू टू पीसेस ऑफ इक्वल पीसेस और साइज वो कर दो। एंड पानी जो है चाहे आप एक ही पंप से दोनों में वो कनेक्ट कर दो, और दोनों बकेट का कनेक्शन नीचे से एक पाइप जोड़ के दोनों में कर दो, तो पानी दोनों का एक साथ हो जाएगा, एक ही पंप से जाएगा पानी ऊपर, और दोनों टावर में उसका कनेक्शन कर दो। हाँ सर ठीक है, समझ गया, क्योंकि सर इस पंप का पावर भी बहुत है, तो सर इसमें बहुत पावरफुली वो करता है पंप। एग्जैक्टली, यू नीड टू समथिंग लाइक वो जो टी और इस तरीके के कुछ कनेक्टर आएंगे, वो लेके अगर ये कर दोगे तो आपका टावर गिरेगा नहीं, दैट इज अ बैलेंसिंग होगा। ठीक है? यस सर, ठीक है सर। बट आई रियली एडमायर अभिषेक, आपने जो सोचा और किया, शायद मैं होता तो उतनी कोशिश नहीं करता, छोटा सा सीधा ऑप्शन में जाता, बट इट्स गुड दैट यू आर ट्राइंग अ टावर आल्सो। बट इसका एक ड्रॉबैक जो हमने बताया है वो भी आप ऑब्जर्व करना कि इसमें जो प्लांट्स चारों तरफ लगते हैं, एक तरफ का प्लांट बेटर ग्रो करता है, दूसरी तरफ के प्लांट को ग्रो करने में थोड़ा सा गड़बड़। ठीक है सर, मैं उस पे चेक कर लूंगा। और ठीक है? ये सर बिल्कुल। चलो, so this is good, really I am happy. Thank you Abhishek. Thank you so sir. I think Dharmendra is desperately waiting to show his unit. Dharmendra? Yes sir. We are eager to see your unit, come on, जल्दी दिखाओ। नहीं सर, अभी पूरा रेडी नहीं हुआ, अभी मैंने सीरीज डाल दिया है। नहीं, बट आपका सिस्टम क्या बनाया है अभी, कहाँ बनाया? मैंने पाइप का एनएफटी बनाया है। हाँ, इज इट समवेयर नियर बाय? नहीं, मैं अभी ऑफिस में हूँ, तो मेरे गोडाउन पे है। तो लेकिन अभी उसको ज्वाइन करना बाकी, तो मैं 2 दिन में ज्वाइन कर दूंगा। मैंने सीड्स डाल दिया है, तो मेरा प्रोजेक्ट में लिट्यूस है, लेकिन मैंने सीड्स बहुत सारे मंगवाए थे, तो अभी धनिया वो सब तो उगने लगा है, दूसरे अभी 2-4 दिन में हो जाएंगे। उससे पहले मतलब हाँ, उससे पहले मैं अपना सिस्टम रेडी कर दूंगा। और
मैंने जो कोकोपीट था वो सर्च करके अमेजोन पे शायद आपको दिख जाए। मे बी व्हाट यू कैन डू, ये वाली फोटो खींच के आप ग्रुप में डाल देना जहां से भी लिया है, पुट ऑन द ग्रुप। ठीक है, सिटी ग्रीन का वॉश बफर कोकोपीट था, लो ईसी, फाइबर मॉइस्चर, पीएच एडजस्टेबल अप टू 70 लीटर, वो लिया था। यस। हेलो। और मैंने सीड्स भी ऑनलाइन दो तीन मंगवाए थे। तो ये प्लांट सीड्स लाइव का लेट्यूस आइसबर्ग है। फिर बट आइसबर्ग नहीं होता है क्या धर्मेंद्र? आइसबर्ग उसमें नहीं होता है एनएफटी में, आपका सही नहीं आएगा, आप अलग लगाना है आइसबर्ग को। नहीं, मैंने जस्ट ट्रायल के लिए सब लीटर्स अलग अलग मंगवाए थे। एक ये मंगवाया था ऑनलाइन, उसमें है लोलो रेड, लोलो रोसो। और ये प्लांट सीड्स का भी लोलो रोसो मंगवाया था। That's good. और एक ओमेक्स चेक करने के लिए आइसबर्ग ओमेक्स का मंगवाया था। तो मैंने आइसबर्ग में भी आप जहाँ कहीं लगाना, मिट्टी में लगा लेना। आइसबर्ग बहुत बड़ा होता है, आपके पाइप में भी चल पाए। ठीक है, तो मैंने सीड्स, हाँ, तो मैंने उसी हिसाब से 3-4 कंपनी ऑनलाइन, अमेजोन पे 1-2 और एक डायरेक्ट कंपनी सर्च करके उसका सबका मंगवा के जर्मिनेशन के लिए रख दिया है। तो अभी 1 या 2 दिन में स्ट्रक्चर बना दूंगा, सिर्फ पाइप काट के होल करके रेडी करना है। तो मैं आई एम एबल टू विद इन 1 to 2 days। ठीक है, तो बाय सैटरडे आपका वीडियो ग्रुप में होगा। ठीक है, डेफिनेटली। That's good. Thank you धर्मेंद्र। Thank you. So who is next? Divya Chauhan, this is Harshit Vyas. Hey Harshit Vyas. Harshit Vyas, we want to hear you. आप हमें सुन पा रहे हैं हर्षित? तो मे बी उपासना, you just look for this. I'm calling. Yes, sir. Yeah. Hemang Patel, are you there? Yes, sir. Yes, Hemang. If you are in a position to switch on your camera, yeah, Hemang. You are also looks like in office. Oh yes, sir. Sure. Yes, sir. आपको ये तो पूरा अभी मैंने कल लेट्यूस जो है, ये सिस्टम तो मैंने पूरा दिखाया था आपको। ओके। और कल लेट्यूस 5.8 pH और 47 TDS पे ये मैंने डाला है। अभी ये जर्मिनेशन हो तो उसके बाद मैं फिर उसको आगे ले जाऊं। और कोकोपीट जो है वो भी मैंने बफरिंग के लिए रखा है, कैल्शियम नाइट्रेट 7.5 ग्राम पर लीटर। ओके। उसके अंदर डालने के लिए, क्योंकि उसका TDS आ रहा था तकरीबन 137 और 139 के बीच में। तो 70 TDS पे ले जाने के लिए उसको मैंने 7.5 ग्राम पर लीटर कैल्शियम नाइट्रेट में डाल के उसको 24 घंटे के लिए रखा है। Yep. But show me again your seed, जो सीड सोइंग किया है आपने। अच्छा, वेट। अब इसमें जैसे आपने ये जो रॉकवूल है, क्या है ये? रॉकवूल है सर, रॉकवूल है। What is the something like benefits promoted you to go for rockwool? ऐसा कोई नहीं है, वो क्या आपके समझो क्लासेस से पहले रॉकवूल मैंने कुछ कहीं पढ़ा हुआ था, इसके लिए रॉकवूल मैंने अभी आपके क्लास के बाद मैंने वो भी ऑर्डर कर दिए थे कि दोनों में R&D करके जिसमें जो रिजल्ट आएगा उसमें कुछ आइडिया है कि किसमें बेटर रिजल्ट आ रहा है। सिर्फ R&D के लिए मंगवाया मैंने। That's good. But आपका जो नेट कप है आपके पास? yes sir, नेट कप है ना। Yeah. So जो best way होता है for everybody, maybe everybody should listen that. So नेट कप में डायरेक्टली जब आप सोइंग करते हो, जैसे आप ये नेट कप है, अब इसमें आपने ग्रोइंग मीडिया भरा सीधे नेट कप में और इसी में प्लांटिंग कर दी सीड की टॉप से, ठीक है, और इसी में जर्मिनेट होने दिया प्लांट को, ठीक है, और फिर उसको ले जाके हमने सीधे ग्रो चैनल में लगा दिया।
इसमें क्या होता है हेमांग कि आपका सीडलिंग को जरा सा भी डिस्टरबेंस नहीं होता है। फ्रॉम सीड टू हार्वेस्ट वो एक ही पॉट में होता है जहां पे वो ग्रो करता रहता है। और जैसे आप इस पे करोगे, जो आपका रॉक पुल है, रॉक पुल में भी आपका जमेगा, जम के उसकी जड़ें निकलेंगी, आप उसको फिर नेट कप में डालोगे एंड देन यू हैव टू कवर विथ योर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? कम अगेन, फिर से बताइएगा। अभी जो कोकोपीट जो मैंने बफर करके रखा है, मेरा नेक्स्ट टारगेट वही था कि ये जो अपना नेट कप है उसके अंदर ही डायरेक्ट में डाल के उसके अंदर सीडलिंग करो। ये सिर्फ आरएनडी के लिए रखा है कि भाई उसमें डायरेक्ट जैसे आपने अभी बताया वैसे उसका मैंने नेक्स्ट स्टेप सोचा हुआ था। That's good. That's good. So you have tank and all ready? नहीं सर, टैंक क्या है, टैंक अभी समझो उसमें थोड़ा जैसे उन्होंने भी दिखाया आगे के वीडियो में कि 50 लीटर का जो उन्होंने ड्रम रखा है, वैसे मैं कुछ ड्रम सोच रहा था उसमें होल करके मैं कुछ आगे कर लूंगा। और ये समझो कि शायद ये सैटरडे तक मैं आपको ये कंप्लीट करके दे भी दूंगा कि उसमें क्या अपना वाटर फ्लो है और क्या है अपने। ओके, दैट्स गुड। एंड देन उसके बाद आपका जो अगला चीज आता है, आपका फर्टिलाइजर रेसिपी इज डिजाइंड फॉर लेट्यूस। हाँ सर, नहीं डिजाइन के लिए अभी मैंने जो आपका जो सीट है एक्सेल सीट उसमें करना बाकी है, क्योंकि मैंने जो आपका आगे सवाल पूछा था कि मेरा कहाँ से फर्टिलाइजर जो बाकी थे 5 अपने, वो मैंने ऑर्डर कर दिए हैं। वो शायद कहीं लॉकडाउन की वजह से वो टाइम पे आ नहीं पा रहा है। ओके, लेकिन ये भी आप रेसिपी बना लेना, इट्स बेटर रेसिपी पहले से बना के। आई वुड लाइक टू डिस्कस ईच एंड एवरी रेसिपी, सो बाद में फिर आपको उस फर्टिलाइजर को चलाते समय कोई दिक्कत ना आए। श्योर। सो अल्टीमेट पर्पस इज कि भाई आप एक बार खुद से फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस यू शुड गेट। ठीक है, so that's great, that's great. So by Saturday we are expecting your video also on the group. Sure, no problem. That's good Emma. So thank you. So Upasna, did you manage to reach this Harshit? Sir, he is not responding my call. Okay, I texted. So no issue. Who is this iPhone? Sir, Harju Bajaj. Hey Mr. Bajaj, are you there? Hey Mr. Bajaj, good morning. Even आपका good afternoon. He is not responding, sir. He is quite punctual, I don't know, maybe. Yes. He is busy somewhere. So. Hey Mr. Bajaj, are you there? Anyway, so we'll move ahead and maybe Upasna, you just contact him. Yes. So Jasmine. Hello sir, good afternoon sir. Very good afternoon. अगर आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हो तो इट इज गुड, अदरवाइज नो इशू। सर चीजें सर अभी फुल्ली सेटअप नहीं है, बट लाइक एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट रेडी एंड सीड्स जर्मिनेट हो रही हैं सर। और वो मैंने क्या कहते हैं अपना कोको कॉयर भी सर बफर करा हुआ है। एंड जो मेरे पाइप्स हैं वो सब भी सर अभी सेटअप हो रहे हैं। तो बस इट्स लाइक अभी बीच में है सर। मैं आपको 2-3 दिन में वीडियो सेंड कर दूंगी पूरा फिनिश होके। एब्सोल्युटली, मतलब बाय सैटरडे एवरीबॉडी नीड टू शेयर देयर वीडियो, ओके? यस, क्योंकि बाद में फिर ना आप मिलोगे ना हम मिलेंगे। अल्टीमेटली एक मॉडल आप कुछ ग्रो करके देखो, अदरवाइज ये 2 महीने का टाइम इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक काइंड ऑफ अ वेस्ट। यस सर, यस। ठीक है, सो बी सिंसियर एंड गेट दैट वर्क डन बाय सैटरडे। आप वीडियो ग्रुप में भेज दीजिएगा। डेफिनेटली सर। ठीक है, दैट्स गुड। एंड आर यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम, एनी चैलेंज, एनी इशू? सर आई एम लाइक लिटिल कंसर्न कि सर 2 इंच के जो नेट कप्स हैं वो छोटे होंगे या फिर 3 इंच के लिए मतलब शुड आई गो फॉर 3 इंच और 2 इंच? लाइक 2 इंच मुझे काफी छोटे लगे, वो कल ही मुझे रिसीव हुआ है एंड काफी टाइम बाद आए थे वो। नहीं, बट आपका पाइप का साइज क्या है?
सर पाइप का साइज सर लाइक अगर मैं 2 इंच का होगा तो मेरे को 3 इंच पे जाना पड़ेगा पाइप का साइज, और अगर 3 इंच का नेट अभी कप आपने होगा पाइप तो लिया है नहीं लिया है? सर ले लिया है मैंने, 3 इंच का लिया है, तो वो 2 इंच के हिसाब से ही लिया था। सो बेसिक देखो, इसमें सबसे बड़ा जो बेसिक होता है कि आपका जो नेट कप है वो इतनी हाइट पे हो जिसमें कि आपका डायरेक्ट पानी का कांटेक्ट नहीं हो रहा हो। सर लेट्यूस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी कि वो 2 इंच का सर कप छोटा तो नहीं पड़ेगा उसके लिए? 2 इंच तो ठीक ठाक साइज है, नो इशू। एक्चुअली जो वो ग्रोइंग मीडिया होता है नेट कप में, दैट इज ओनली टू होल्ड द प्लांट, अदरवाइज प्लांट न्यूट्रिशन तो पानी से ले रहा है ना। यस सर। तो जैसे ही आप लगाओगे, आपका रूट वगैरह क्या है, सबसे पहले जब रूट उससे बाहर आने लगेगी, आपके नेट कप से रूट निकल के बाहर आएगी, तब जाके आप उसमें इसमें डालोगे जो ग्रोइंग मीडिया है आपका ग्रो चैनल में। तो जो रूट होगी वो क्विकली आपका पानी तक पहुंचेगी एंड पानी फिर उसको एब्जॉर्ब करना शुरू करेगी। एंड द ग्रोथ ऑफ दैट पर्टिकुलर रूट जब आप उसमें डालोगे ना ग्रो चैम्बर में, यू जस्ट ऑब्जर्व कितनी तेजी से बढ़ के वो पानी की तरफ पहुंचती है। ओके सर, सो जो भी सर प्रॉब्लम होगी आई विल डिस्कस विद यू। बाकी सर एवरीथिंग इज लाइक ऑन ट्रैक अभी तक। The good part would be if you can post on the group. So होता क्या है कि जैसे आपने कोई query की, हो सकता है कि somebody is also struggling with the same query, मगर उसमें जैसे आपकी query का resolution होता है तो उसको भी resolution मिल जाता है। And don't hesitate asking questions. ओके सर, ओके सर। नो तो ग्रुप में क्या होता है कि वो लर्निंग जो होती है मल्टीपल हो जाती है। मैं बताता आपको, बाकी लोगों को भी बाय डिफॉल्ट अगर वो देख रहे हैं तो उनको दिख जाता है। सर इसमें मेरे को भी सेम ही है, तो मेरे को एक क्वेरी और बचता है सर कि 4 इंच का पाइप है, 2 इंच का अपना नेटपॉट है, और जब भी सीड जर्मिनेशन हो जाएगा तो नेटपॉट से तो बाहर मतलब ज्यादा 2 इंच तक तो आएगा ही नहीं स्टार्टिंग में। तो मैं पानी में डालूंगा तो पानी में टच होने वाला नहीं है, ऐसा लग रहा है मेरे को स्टार्टिंग फेज में। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं, चलने दो। ठीक है, तो ठीक है, तो मैंने 4 इंच का पाइप और 2 इंच का प्लग लिया है तो चलेगा ना? हाँ, उसमें एक ही प्रॉब्लम आएगा, इन केस यू ऑब्जर्व कि हाँ जी भाई ज्यादा टाइम हो गया, क्योंकि ये रूट बहुत तेजी से बढ़ती है। आप नेट कप को उसमें डालोगे ना तो 2-3 दिन के अंदर वो आपकी लगभग 2-3 क्या 1 दिन में ही within 24 hours it will reach to the water. Okay, and that is the advantage of always having a flat bed, जो flat bottom grow channel होता है, तो उसमें रूट को ज्यादा चलने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप देखो तो ग्रो चैनल में मुश्किल से few मिलीमीटर्स का स्पेस होता है बिटवीन आपका नेट कप और उस पे। और दूसरा क्या होता है कि नेट कप इवन अगर बॉटम तक टच भी कर रहा है, बिकॉज द water level is a very thin passing in that grow channel, it is not impacting the growth or the growing media, कोकोपीट पे impact नहीं करता। बट पाइप में अगर आप डाल देते हो तो पाइप में क्या नीचे तक टच कर जाएगा, तो पानी इतना ज्यादा हो जाएगा आपका सोख करके, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ वाटर इज हायर इन पाइप। These are the limitations of pipe. Okay. जो आप ये स्ट्रगल फेस कर रहे हो, that is the limitation of going with pipe. So that's how it is always recommended to go for grow channel. Okay. ठीक है, बट उसमें हम लोग देखेंगे, एक ही चीज ऑब्जर्व करके रखना है कि प्लांट की रूट कितनी तेजी से बढ़ रही है, सूख तो नहीं रही है, और ग्रोइंग मीडिया तो नहीं सूख रहा है, बिकॉज ग्रोइंग मीडिया जो कोकोपीट होता है उसमें अच्छा खासा मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, so hopefully you will not face any problem, but if we are going to face any problem, we have to find out the solution for that. Okay, yeah, chalo, thank you Jasmine. Harshit, we haven't able to reach to him. This is Pawan. Yeah, he called me. He has some problems related to her mother's health, so okay, yes, no issue. No issue. Next so, one is Mr. Meghavat Pawan Kumar, sir. Yes. Sir, I have ordered everything, but I didn't delivered anything, sir. तो अभी तक आपको कुछ मिला नहीं? Yes, sir. I have ordered everything other than fertilizers. Other than fertilizers.
चलो ठीक है। तो बट क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? Sir, the delivery date is showing by the August 29th. So as soon as possible, I can make it. August 29. Yes, sir. It was delivery date is showing on that. चलो, so your as soon as system is possible. NFT. Sir, it was soilless, sir. Soilless. Yes, तो sir. अभी आपने ग्रो बैग वगैरह सब ऑर्डर किया हुआ है? Yes, sir. I have now I'm going to make self polybag, sir. Then you तो अपने से बनाओ ना. That is very good. You can show the others. Yes, sir. It was showing some late, so I am trying to make my own polybags. Other than that, I have to order coco pit. I have ordered, but I didn't got anything, sir. Now up to now. So polybag नहीं आप वो बनाओगे ना, गनी बैग से राइजो बैग? हाँ, राइजो बैग से I will try, sir. Which was I'm comfortable. I will go through it and I will inform you, sir. हाँ, अगर कोई मतलब नहीं कर पाते हो ना, तो यू कैन जस्ट टेक अ हेल्प ऑफ लोकल, जो यार गांव में या शहर में कहीं पे बैठे रहते हैं ना, वो टेलर। यस सर। एक कॉर्नर में बैठे रहते हैं, उनको जाके दिखाओ, वो बना देंगे। ओके सर। ओके सर। या थैंक यू सर। गिव मी अ मोमेंट, आई विल जस्ट कम। Yes. So who is? Pardon? Okay. So you just do it, huh? Laundry is already been taken by somebody. Okay. Okay. Yeah. So who is next, Divya? Megha Rai, sir. Megha. Good afternoon, sir. Hey, good afternoon. How are you? Hello. Hey, Megha, yeah. Hello. So I think she has some network issue. Hello, Megha. The housekeeping lady has displaced me outside. So, Megha, what happened? Good afternoon. Yeah, very good afternoon, Megha. Tell me. So, मतलब Looks like she is having an internet issue. Yes, sir. Yeah. So maybe we can go ahead with somebody. Okay. The next one is Priyanka Mane. Yeah, Priyanka. Hello, sir. Good afternoon, sir. Very good afternoon, Priyanka. So if you can switch on your camera, it is good. Otherwise, you can go ahead. Sir, I have chosen NFT for partner. Spinach. Okay. But right now I'm in office. I can show you, sir. And I have bought everything. I need to arrange them. I just need some time, sir. So before Saturday, I need to have your video on the group. Sure, sir. Okay. I'll send it. That's good. Yeah. Who is next? Ram Jat. Mr. Ram Jat. Ram Jat. Hello. Hello. Good afternoon, sir. Good afternoon, Ramjat. How are you? Fine, sir. हाँ जी, बताइए आपका क्या स्टेटस है? सर एक्चुअली मेरे पास अभी कुछ चीजें हैं नहीं। मैंने एक बार अपने फादर को एक बार वो बोला है, तो उन्होंने बोला है कि हाँ अपन करेंगे, बट अभी उन्होंने बात किया है एक दो जगह, तो वो अगर हाँ करते तो मैं आपको भी सैटरडे तक अपना रिस्पॉन्स भी दूंगा। चलो, इन केस अगर क्या कहते हैं आपको कुछ सपोर्ट चाहिए कि हाँ जी, तुम्हारा सिस्टम कौन सा है, एनएफटी है या क्या है? सॉइललेस। हाँ सर, अगर आप बात करेंगे एक बार तो अच्छा होगा। हाँ जी,
सर अगर आप एक बार फादर से बात करेंगे तो अच्छा हो। इज ही देयर? नो अभी सर है? अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं है। सो आप एक बार कनेक्ट करके मेरी बात करवाइएगा एंड टोटल एक्सपेंस कितना हो रहा है वो आप देखिएगा कि कितने पैसे लग रहे हैं। हाँ ठीक है। ओके सर, हाँ थैंक यू सर। तो बस एक बार करोगे तो आपको एक आइडिया आएगा। ठीक है। ओके सर, चलो दैट्स गुड। थैंक यू सर। या आप कनेक्ट कराइएगा कभी भी जब भी अवेलेबल हो तो बात करेंगे। ओके सर। ठीक है। या हु इज नेक्स्ट? शिवानी सेठी। या शिवानी। हेलो। Hello. या शिवानी। Good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून। So I can send you a video क्योंकि मैं घर पे हूँ और मैंने सेटअप फार्म हाउस पे करा हुआ है। Okay. और So मेरे पास are you facing any difficulty, any challenge or anything? Definitely, if you have already have a setup, then you are going to share the video. But are you facing any issue? So मैंने एक्चुअली अभी तक फर्टिलाइजर रेसिपी तैयार नहीं करी है। आई एम स्टिल सर्चिंग रिसर्चिंग अबाउट इट। तो अभी मेरे को जैसे जो ग्रुप पे शेयर करी थी, एक वेबसाइट का नाम शेयर किया हुआ है। आई एम लुकिंग दैट अप ऑल्सो, लेकिन उसमें इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं दैट इट इज वेरी कंफ्यूजिंग कि कौन सा सिलेक्ट करा जाए। ओके, तो आपकी क्रॉप कौन सी है? सर मैंने क्रॉप थाइम और मार्जोराम का किया है, बट मैं प्लांट और भी चीजें कर रही हूँ। लाइक सर बेसिल है, मैं हर्ब्स ही कर रही हूँ, बेसिल, मिंट और रोजमेरी। Okay, but rosemary is a different nature. You have to see. Thyme, basil, or marjoram is okay, but rosemary is having a something different kind of a nature. So whether that is going to work or not, what you can do maybe you can put together the basil as well as this one, the basil and rosemary. Okay, rosemary. Rosemary. Thyme and this one marjoram should be in one system, and the other two should be in other system, because basil is also somehow nutrient exhaustive crop. It takes a lot of nutrition, as well as rosemary also required a little bit higher kind of a nutrient. और अगर आप इसको दोनों को एक साथ क्लब करोगे तो marjoram and thyme, they are something very very tender kind of plants. So their requirement is different than other two. But अगर आप rosemary नहीं कर रहे थे तो basil उसी system में चल जाता। Basil is something okay, but rosemary is going to struggle in this system. और सो अगर हम सैलेड क्रॉप्स पे जाएं, जैसे केल प्लांट कर रहे हैं या लेटस प्लांट कर रहे हैं, इवन अरुगुला प्लांट करने का मैंने सोचा था। केल, अरुगुला, इवन आपका थाइम, आपका मार्जोरम, even if you want you can extend use lettuce. Obviously if you want to extend you can opt for basil also. These are the crop you can grow in a same system. Even this oreganos, these all are something like you can do in a same. Okay. Yeah. Okay. और मुझे बस जैसे मैं फर्टिलाइजर्स और न्यूट्रिएंट्स का थोड़ा और रिसर्च करती हूँ, सो आई थिंक आई विल हैव अ लॉट ऑफ डाउट्स अबाउट दोज। तो जैसे जैसे मैं करती हूँ आई थिंक मैं ग्रुप पे फिर आई कीप आस्किंग की Sure. That's something like good thing. Whenever you have a query, you put there. Whenever I'll get the time, I'll respond on. Okay. But all these crops you are going to grow in NFT or in grow bag? सर अभी मैंने NFT का ही सेटअप करवाया है। एक बार when I get the hang of it, I think मैं सारे ट्राई करना चाहूंगी। So what I'll suggest, you go for something like a lettuce and arugula in NFT, rest in a soilless. Okay. Yeah. Okay. Fair enough. So we are going to get a lot of queries from you on the group, and plus the video of your system. Yes, definitely. That's great, Shivani.
Thank you. Yeah. Yes, Upasna. Next one is Mr. Siddharth Raghuvanshi. Hey, Raghuvanshi. Hey, Siddharth Raghuvanshi, switch on your, unmute yourself. Hello? He is muted. Hey, Siddharth, can you hear us? Meantime, Yelugutta have some questions. Yeah, Yelugutta. Hello. Hello. Yeah, Siddharth, we can hear you. Just wait for a moment. Let this Yelugutta. Sir, I have shared some photos with you, sir. Whatever the project I have done, sir. In personal WhatsApp I have sent, sir. I'll send the video on Saturday, sir. That's okay, but share on something like a group, not personal. Yes, sir. I'll share in group also, sir. Now. Ah, that's good. No I'll send the video on Saturday, sir. That's better. That's better. Okay, that's better. So yes, Siddharth, go ahead. Siddharth, go ahead. No, sir, he's not here. So maybe Upasna, you look for the next. Sir, done, sir, already. Who? Yes, sir, we have completed. Okay. Yeah, Bajaj, are you there? Mr. Arju Bajaj. And I can see this Jan, 50T Jan. We haven't been to the. Sir, she is our Dean of Science. Oh, so she's just something like join us as a something like listener. Yes, sir. That's yes. great. That's great. So, have you called this Kaju, Sir Bajaj? Sir, not connected. Okay, maybe that's not an issue. So, Dharmendra I'll. Patel Yeah. wants to some ask. Who is? Dharmendra Patel. Two hand raises. Yeah, ask the question. Yes, sir. जो मेरे पाइप वाला NFT बना रहा हूँ इसमें लिटियस डाल रहा हूँ और आप वो बड़ा वाला नहीं डालूंगा तो जो दो हॉल का बीच का डिस्टेंस है वो हाफ फुट रखूं या उससे भी कम करूं? नहीं, बट आप कौन सा क्रॉप कर रहे हो? लेट्यूस में समथिंग लाइक आपका अगर लीफी कर रहे हो तो समथिंग बिटवीन 17 to 20 सेंटीमीटर इज गोइंग टू वर्क फॉर यू. ओके, तो 30 सेंटीमीटर इज मोर देन इनफ. इस ज्यादा है वो तो 30 सेंटीमीटर. तो ज्यादा हीट लाइट मिलेगा ना सर? ज्यादा लाइट तो मिलेगा, ठीक है, बट आपको जब आप पैसे ज्यादा खर्चा करते हो तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि ज्यादा नंबर ऑफ प्लांट ग्रो कर सको. 25 to 27 mm. 17 centimeter to 20 centimeter is good for leafy lettuce. Okay. 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 So, is there anybody else who need to ask a question, or shall we close this? But I request Upasna, you have to be just something proper message to everybody. Strictly asking for. Hey, Siddhartha, can you hear us, Siddhartha? No, sir, is not responding. Siddharth Raghuvanshi, yeah, he is unmuted now. Please. Hello, Siddharth. Anyway, other sounds are there except that his voice. So what I'll request Dr. Upasna, you just something follow up with everybody, because yes, that is the most important thing for the course. The course is designed that way. We have given a lecture and all. Now they need to utilize that for developing their own system. And if they will not do that, then definitely the effort is not deliver the result. We were
targeted that everybody will have their own small unit. Yes. So maybe you can just follow up with everybody, put the message in the group, and if those who are not, so I inform them. So that's good. So what I'll do, I'll put another quiz for everybody on fertilizer recipe, because एक बार आप system design कर लोगे तो अगला काम जो challenge आएगा वो fertilizer recipe design का आएगा. मैं सबके नाम से एक आपको Excel sheet उस पे upload करूँगा assignment section में, जहाँ आपको जाके एक रेसिपी उस पर्टिकुलर क्रॉप की और जो मैं EC या pH या वाटर क्वांटिटी दूंगा उतना बना के आपको सबमिट करना होगा. ठीक है? So that I'm going to upload maybe today or tomorrow. So that's great. Some of the students are really doing good, and some they want to improve a little bit, but yeah, ultimately we are heading towards a good result. So thank you everybody. Thank you, Dr. Upasna. yes, sir. Thank you. Salini is having a question, I think. Yes, Yeah. sir. सर जैसे Yes, फर्टिलाइजर्स खरीदना है तो जितने भी सारे फर्टिलाइजर्स हैं 13 सब लेने होंगे अभी इनिशियली? Absolutely, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी, जितना छोटा पैकेट आप ले सको. अच्छा, ठीक है, ओके सर. बट उसमें देखिएगा कि आपका उसमें 1919 भी लिखा हुआ है, बट 1919 इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल फर्टिलाइजर, तो 1919 मत लेना. ठीक है, थैंक यू. इंडिविजुअल फर्टिलाइजर इसलिए लेने की जरूरत है क्योंकि आपको सीखना है कि कैसे प्लस माइनस करना है. एक बार आप सीख लोगे उसके बाद आप चाहे दो कॉम्बिनेशन वाले भी न्यूट्रिएंट ले सको, बट पहला ये शुरू ये होता है कि आप जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं उनको अलग से ही ले लो. ठीक है, ओके, थैंक यू. चलिए, थैंक यू Mr. एवरीबॉडी. Dharmendra Patel. या धर्मेंद्र also having some यस question. सर. और यस सर, और वाटर में सिलिकॉन ले सकते, सिलिकॉन स्प्रेडर कम पेनिट्रेटर कम एडजुवेंट. सिलिकॉन का यार हमने ट्रायल किया, बट सॉइल में तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आया. सिलिकॉन का एज सच कोई इम्पैक्ट मुझे दिखा नहीं. वी ट्राइड सिलिकॉन इन our lettuce, but somehow we failed to get a result like we were getting in soil. Okay. Yeah. But somehow Dharmendra is somehow really a good student, but I feel like he is asking a more questions, so maybe Upasna can think for increasing his fees. सर मेरा बैकग्राउंड फार्मिंग है इसलिए. Oh, no, anytime. Yeah, that I really like about you. You always ask a question. See, for me, those who are asking a question, they are always good for me. Okay? Okay, thank you. That's good. So Sir, I think, Mr. Yellowgunda. Yeah, Yellowgunda. Sir, I have a question. Like, since we'll be doing fertigation, no, sir, we can go with some foliar spray of these nutrients also, no, sir? If you remember, when we were talking about this crop nutrition, we discussed this point. I think you missed that. But foliar nutrition is a kind of emergency arrangement. Okay. आप emergency arrangement कर रहे हो अपनी crop को nutrient supply करने का, और अगर आप देखो जो nutrient supply करने की capacity होती है foliar root से, it is only hardly few percentage, 1 to 5% only. So it is only emergency arrangement. If you are not doing your fertilizer management efficiently, then you look for this type of a foliar option. Otherwise, there is no need for a foliar option spray. Okay. Then how come we can give this amino acids and other things, sir? Like foliar spray, it will be easy, no, sir? Since in market those commercial products are. I suggest you to study the mode of action of amino acid, humic acid, or all the range of these type of product available in the market. How they work and for what purpose they are designed. So once you just study that, see basic concept between these products are, they are the products which are of a long polymer kind of a chain, and they hold the nutrient inside, and gradually they release that nutrient. Do we really need that in hydroponics? So that question, I'm thinking with that question to you, that you study that mode of action of these kind of a product.
especially humic acid and amino acid, and then we will discuss. Okay. Okay. Yeah. So I think we are done with this. Yes. Charlie, thank you. Okay. Thank you very much. Yeah. We'll meet again on Monday. Yes. Yeah. Thank you all.